very good afternoon to all of you. At the very outset, I wish you all a very happy new year, and I formally welcome you all to this press conference by the Election Commission to announce the schedule for the elections to the Delhi Legislative Assembly. Besides being the first presser in the new year, this presser also holds a special significance, as from Bihar Assembly elections in 2020 to the Delhi Assembly elections in 2025, Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar Sir would be completing one full election cycle of conducting elections for all legislative assemblies in 31 states, union territories, the historic Lok Sabha elections 2024, the presidential and the vice presidential elections in 2022, and the elections to the Rajya Sabha. Indeed, a rare feat. With this, on dais, I would like to welcome the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar Sir, and the Honorable Election Commissioners, Shri Gyanesh Kumar Sir and Dr. Sukhbir Singh Sandhu Sir. We also have with us today Senior Deputy Election Commissioners and Deputy Election Commissioners in charge of various divisions in the ECI headquarters. The format of the press conference will be as follows. There will be an opening remarks by the CEC Sir along with the presentation. We will share the copy of the presentation with all of you after the event is over. This event is also being live streamed, and the presentation slides along with the updates will be shared live on our social media platforms. Following this, there will be a question and answer session. When you want to ask a question, kindly raise your hand and wait for your chance to be called to ask a question. I will direct the mic to come to you. Introduce yourself and your organization and then ask your question. I request all of you to please keep your mobile phones on silent mode. Now I request Honorable CEC to kindly deliver his opening remarks. Thank you, Anuj. Honorable Election Commissioner Shri Gyanesh Ji, Dr. Sukhbir Singh Ji Sandhu, all my colleagues from the Commission, friends from media, we welcome you to this press conference for the announcement of the schedule for the general elections in Delhi and also the by-polls wherever they are pending. जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये इस वर्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रीट ऑल दी वोटर्स, ऑल दी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और जैसे अनुज ने कहा कि ये मेरी SCC आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सो आप सबको सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि खासतौर से युवाओं से इसी तरीके से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाते रहें। बहुत ही सुंदर बगिया है, इसको अपने वोट से हमेशा सजाते रहें। Friends, 2024 has been a year of elections globally. पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेसीज में ऑलमोस्ट 2/3 of the population in the democratic world went for voting. हमारे यहाँ भी 2024 में 8 राज्य और यूपीज में इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शन हुआ। एक अच्छा माहौल रहा। नए कीर्तिमान लोकसभा इलेक्शंस में हमने बनाए। विश्व में मैक्सिमम वोटिंग का परसेंटेज का रिकॉर्ड बना। लोगों की भागीदारी का, महिलाओं की भागीदारी का, वायलेंस फ्री इलेक्शंस का, नो रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड सीजर्स, इंड्यूसमेंट फ्री टू द एक्सटेंट इट वाज पॉसिबल, J&K, मणिपुर, LWE एरियाज, सो काफी रिकॉर्ड्स बने और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से लोकतंत्र और मजबूत होता रहेगा। अनदर लैंडमार्क इज इन द मेकिंग। आज कल हमारी इलेक्टोरल रोल्स रिलीज हुई, आज भी 4 स्टेट में रिलीज हो रही है। वी आर क्रॉसिंग 99 crore वोटर्स, so we are going to be 1 billion voters very soon, nation of 1 billion voters very soon. That's another world record which is in making. But with this SSR, after the declaration by the state of UP, Rajasthan, Punjab and Bihar, declaring their SSR results today, will be crossing 99 crores, first time. महिलाओं की संख्या भी 48 करोड़ से ऊपर पहुंचने जा रही है इस SSR में, विच इज ए वेरी वेरी
very, very strong indicator and a sense of empowerment for the women of the country. Friends, नए साल में पहली बारी दिल्ली की है और दिल्ली की अपनी एक विरासत है. एक पूरा देश यहाँ रिप्रेजेंट होता है. I mean, you can see the entire country in Delhi. मतलब एक विविधता का बिल्कुल एक जागृत नजारा देखने को मिलता है. दिल्ली में किसी भी जगह में चली जाइए, हर कल्चर, हर जगह के लोग आपको यहाँ मिलते हैं. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिल्लीइट्स की बढ़ जाती है. एंड वी आर श्योर दिल्ली विल दिस टाइम वोट इन लार्जर नंबर्स, और जिसको अगर कह सकें तो दिल्ली दिल से वोट करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है. फ्रेंड्स, इन सभी उपलब्धियों के बीच आई एम कमिंग टू ए लिटिल सीरियस इशूज, एंड आई टेक some time before I come to the Delhi specific issues. 24 में जहां मैंने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, वहीं चुनाव के दौरान कुछ डाउट्स, कुछ शंकाएं, कुछ कंसर्न्स भी रेज होते रहे. So prior to coming to Delhi elections, let me on my own tell you what kind of concerns were raised. And I'll narrate all these concerns, and also before coming to Delhi, try and answer on each one of them so that no doubts remain. कहा गया कि इलेक्टोरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए. ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से. अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात. तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में है और सबके मानस में फैला दिए गए हैं. ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं. मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता. कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी, इस तरीके की चीजें कही गई. ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती है. ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बेटे के नाम पर, कभी किसी नाम पर. कभी कहा गया कि ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है. वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद. ये काफी एक विषय पब्लिक में रहा, जनरल इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद. कैसे 5 बजे के बाद बढ़ सकता है, कहां बढ़ गया, कौन सी 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में कतारों में, लाइनों में लोग खड़े हुए थे, हमें वीडियो दिखाइए. इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, जिसके उत्तर मैं आज देना चाहता हूं बिफोर गोइंग टू दिल्ली इलेक्शन. ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज द डाउट्स गेट्स रिमूव्ड, यू कैन आस्क मी फर्दर क्वेश्चंस इफ यू वांट, एंड दीज क्वेश्चंस डू नॉट कम अगेन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन. वोटर्स में मिसमैच हो गया, जितने वोट पड़े थे वो बढ़ा दिए गए. पहली बात तो ये था वोटर टर्नआउट, चलिए बढ़ा दिए. उसके बाद काउंटिंग में मिसमैच हो गया, कहीं कम गिन लिए, कहीं ज्यादा गिन लिए. ये भी मुद्दे उठे. काउंटिंग को स्लो डाउन कर दिया गया. अभी एक नया मुद्दा उठा है कि हमने कोई रूल चेंज कर दिए हैं जिससे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई. तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली, अगर एक बहुत बड़ी पिक्चर आपको मैं दिखाऊं तो 10.5 लाख बूथ हैं बने. हर बूथ पर 4 से 5 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो उनका नंबर हो गया 10.5 into 4 भी कर लें तो करीब 45-50 लाख लोग. ये 45-50 लाख जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, ये उसी स्टेट के होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स के होते हैं. एंड चुनाव से बूथ पे पहुंचने के 2 days 3 days बिफोर दे आर रैंडमाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड टीम्स आर फॉर्म्ड. सो दे मीट फर्स्ट टाइम 2-3 days, सो दे कैन नॉट बी. ऐसा लगता है कि जैसे 40-45 लोग कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई गलती गड़बड़ करने के लिए बैठे हुए, इतने सारे क्वेश्चन थे. बड़ा पेन होता है because they are at the receiving end. So I'll explain how this is not possible or what is the answer to this. I'll attempt answers to all these questions, and it is our duty. Actually, right to question is inbuilt in democracy. It's an inherent right. We respect this right. We feel that क्वेश्चन करना और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है. तो आज इन सभी सवालों की पूरी इज्जत रखते हुए हम इनका जवाब देंगे 1 by 1. और अगर इसको मैं कुछ
शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। तो फ्रेंड्स, बिफोर गिविंग यू आंसर, एक पूरी पिक्चर दिखाता हूं आपको। ये स्लाइड देखिए और इसको अपने मानस में थोड़ा बसाइए। अभी अनुज ने कहा कि पिछले 2020 से 30 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं। 15 स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज आर द बिगेस्ट पार्टीज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन इलेक्शन एंड द डेमोक्रेसी। आप देखिए 2020 से स्टेट बाई स्टेट हमने दिखाया। विद दिस वी आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ग्रुप में ही आ जाएगा, स्लाइड बाय स्लाइड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। 20, 21, 22, 23, 24 हर जगह में डिफरेंट पार्टीज आर कमिंग थ्रू, आर गेटिंग मैक्सिमम सीट्स। दिस इज वन रिफ्लेक्शन हाउ फेयर, हाउ डीप रूटेड the Indian fairness of the Indian elections are. The voter, Indian voter is extremely aware, conscious, he understands everything. तो वही जवाब देता है। बट एनीवे, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चित है। फिर से अगर फिर से जो पार्टी सब जानती हैं तो वो भी जीतती हैं। अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टोरल रोल। अभी भी इलेक्टोरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको करीब करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टोरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 है। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम। हमने मेहनत करके इस पूरी प्रक्रिया का एक चार्ट बनाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, राइट साइड में आप देखेंगे अक्टूबर। सो दिस इज नेसेसरी फॉर द नेशन टू नो। और दुनिया और हिंदुस्तान में दूसरी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें हर साल आपके आइडेंटिटी का या आपके वोटर का किसी चीज का एनुअल वेरिफिकेशन होता है। अक्टूबर हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर बीएलए, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शन है उनकी कॉपी पब्लिश की जाए। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है।
डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ईआरओ और एआरओ को जाके पर्सनली चेक करें। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज ओनली बिल्ड फर्दर ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है सडनली, ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जो अक्टूबर, जो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए। ओनली एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस व्हेन इट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट दिस काइंड ऑफ इश्यूज आर रेज्ड। दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। किसी बीएलओ के द्वारा अगर कोई भी एक दो नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं, और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो विल टेक एक्शन ऑल्सो। आफ्टर एक्सप्लेनिंग एसएसआर आई कम टू द ईवीएम्स। बहुत बार ईवीएम्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से ये सब एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूं, ताकि ये अभी अब स्लाइड्स भी आपको ये वाली सब हाथ की हाथ सोशल मीडिया पर भेजी जा रही है। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली अगेन, क्योंकि इतने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि पब्लिक को पता लग जाना चाहिए। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डालेगा, वो एजेंट के सामने डालेगा, उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है, वो उसी दिन मॉकपोल करके देखें सिंबल ठीक पड़े, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाए, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है, एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है, आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है, उस दिन आपने मॉकपोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉकपोल कर। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को तो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू वीटीआर। ईवीएम्स को वापस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन, फिर सील चेक करें। उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला दो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी करेगी। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। There is no evidence of unreliability or any drawback in the EVM. I am circulating it. Please see the details. Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. And we are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on.
and I want to clarify this so that it remains, questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system. ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. What else can be said? Friends, everything is in the form of an FAQ available. We have uploaded, we have conveyed to from wherever these questions have come. Please refer. Now, let me come to the voter turnout. ये बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे गए. शाम 5 बजे के बाद अचानक से 8-10% शाम 11 बजे तक कैसे बस उसी दिन की बात हो रही है, नेक्स्ट डे की बात नहीं हो रही. ऑन द डे ऑफ पोलिंग करोड़ सौ वोट बढ़ा दिए गए. शाम 5 से 6 बजे के बीच बताइए कि लंबी लंबी कतारें कहाँ थी, हमें सीसीटीवी, इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए. अभी आपको याद होगा कि इट्स ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव. आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव. एक ग्लोबल एक्सपर्ट हैं आईटी के, जब हमारा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था ईवीएम कैन बी है. सब आप लोगों ने देखा होगा. अरे भाई, वहां ईवीएम होती ही नहीं है. देयर आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म्स, दे आर नॉट ईवीएम्स. देयर आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स विच डू वोटिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स. वो लीडर्स होते हैं, वो होते हैं. उसके बाद भी यहाँ हल्ला हो गया, खूब चला सोशल मीडिया में कि वो बोल रहे हैं कि ईवीएम है कुछ. अभी क्या कहा सेम एक्सपर्ट ने कि हमें तो लगे 1 महीना 1.5 महीना काउंटिंग करने में, इंडिया में तो 1 दिन में काउंटिंग हो जाए. We just follow the narratives which are suiting. Let me explain how VTR cannot be changed. Please, इसको बस बना के फिर आई कम टू दिल्ली. सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे, 1:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स गो फ्रॉम बूथ टू बूथ. दे कलेक्ट व्हाट इज द ट्रेंड. अगर 10.5 लाख बूथ से अनकनेक्टेड सिस्टम से, फोन से या मैसेजिंग ग्रुप से फिगर कलेक्ट करनी हो तो हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए जहां रात को 6 बजे अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुआ, 6 बजे में पहले आपको एग्जैक्ट वोटर दे दो. फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ देते हैं. जोड़ने के बाद में वो हैंड टू हैंड लाइव हो जाएगा सिस्टम. फिर आप कहेंगे कि ईवीएम को हैक कर. 5:30 बजे, 5 बजे के बाद जस्ट प्लीज इमेजिन 5 से 7 के बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पहली बार वहां गया है, छोटे से स्कूल के टीचर है, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, वो क्या काम करते हैं. जितने लोग लाइन में खड़े हैं पहले उनको पर्चियां टोकन बांटते हैं कि आप लाइन में रहिए, आपका वोट जरूर लेंगे. थोड़ी थोड़ी कहा सुनी भी होती है गेट पर कि हम तो टाइम में आ गए थे. तो वो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, बंद करते हैं, सबका वोट डलवाते हैं. उसके बाद में वोटिंग खत्म कराते हैं, मशीन को सील करते हैं, बैटरी को सील करते हैं, एन नंबर्स ऑफ फॉर्म्स बनाते हैं, 17C इंक्लूडेड. और सोचिए 17C बनाने के बाद हाथ से लिखते हैं, लिखने के बाद एजेंट के हाथ में वो कॉपी देते हैं, सील कराते हैं. अब एक आप इमेजिन करिए 10.5 लाख बूथ पर अगर 4 एजेंट भी मान लें तो 40 लाख फॉर्म 17C आर अवेलेबल विद द एजेंट्स एट क्लोज ऑफ पोल बिफोर लीविंग पोलिंग. अगर महाराष्ट्र का जिक्र ले लें तो 1 लाख बूथ के लगभग, 4 भी मान लें तो 4 लाख 17C फॉर्म. अगर मैं यहाँ 300-400 लोग हैं आप लोग, उनके बीच में एक कागज सर्कुलेट कर दूं और कहूं कि 1 घंटे के बाद में इसको मुझे वापस कर दीजिए, मैं बदल दूंगा, तो बदल दीजिए. और इलेक्शन अथॉरिटीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड इफ एनीबडी has that kind of a granular data, please tell us. It has whatever you want to know about elections. It has everything in that data and we have carefully uploaded it, counted. जिन्होंने ये कहा कि इतनी वोटिंग पड़ी, इतना कम हो गया, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना कम, reputed organizations have also joined this course. There is a course case pending in the Honorable Supreme Court. Will answer in detail there, but let them look inward and see
if it is available anywhere in the world. Disclosure is our forte and glean anywhere. जनरल एक्विजिशंस मत लगाइए, कोई भी स्पेसिफिक एक्विजिशन हमें बताइए, इस बूथ पर ये गड़बड़ी हुई, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये गड़बड़ी हुई, हम जवाब देंगे। ये हमारी ड्यूटी है, हम जवाब देंगे, पूरी इज्जत के साथ जवाब देंगे, पूरी विनम्रता के साथ जवाब देंगे। फिर से बिफोर कमिंग टू दिल्ली, इसको फिर से मैंने कुछ लिखा था, मैं अगर कह सकूं आज जाने से पहले, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं। फ्रेंड्स, इंडिया इज गोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ इलेक्शंस। ये हमारी साझी विरासत है, सभी स्टेक होल्डर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की, इलेक्शन कमीशन की। कमीशन में कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश हो ही नहीं सकती, इतने डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं। इंडिविजुअली कोई गलती करे तो हम सजा देने के लिए तैयार हैं, सजा लेने के लिए तैयार हैं। ये साझी विरासत है। अगर हमने इलेक्शन करा के अच्छे लोकतंत्र में बीज बोया है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें खाद डाला है। ये सबकी साझी विरासत है, बहुत मेहनत से इसको बनाया। कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो हम पूरी निष्ठा के साथ उसका जवाब देंगे, लेकिन झूठ के गुब्बारे प्लीज मत उड़ाइए। बिकॉज इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, लोगों में एक भ्रम फैल जाता है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। और प्लीज आस्क यंग वोटर्स अराउंड इन योर हाउस और नियर यू, वो भ्रमित होते हैं, कहते हैं क्या करना है वोट देके जाके। वी आर पुशिंग द यंगर लॉट टू, और दोज हु आर सिटिंग ऑन द फेंस, टू आउटसाइड, टू डिस्करेजिंग देम फ्रॉम वोटिंग। Please, it is our joint duty to encourage them. Coming to Delhi now. Next. Delhi has 70 constituencies, 58 general and SC constituencies are 12. If I come to the voter profile, voters, there are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere to get new voters. If we look at the PWD voters, there are 830 centurion voters also. We have worked on transgender voters. We want them to please come and join us. There are 1.0985 plus voters. If I come to polling stations, there are 13,033 polling stations spread over 2,697 polling locations. Average is only 1191. ये भी एक प्रश्न पूछा गया था कि वोटर्स को संख्या ज्यादा क्यों। Average is 1191. Across the country, the number ceiling is 1500. There are some booths in Delhi which are 1500 and plus, which will have auxiliary booths. और इस बार अगर आपने मुंबई का जिक्र देखा होगा, अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूँ, तो बहुत फैसिलिटेशन बूथ्स में किया गया। दिल्ली में भी वही तैयारी है। दिल्ली में भी बूथ्स को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप रोल से पोल की बात करते हैं और जब पोलिंग स्टेशन पे आएंगे तो आपका अनुभव, आपका एहसास सुखद रहे, इसकी हम पूरी प्रयास करेंगे। प्लीज कम टू वोट इन लार्जर नंबर्स। विल प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, साइनेज, रैम्प, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। जो हमारे PWD मतदाता आएंगे या सीनियर सिटीजन आएंगे उनके लिए अलग से गाड़ी रखेंगे, वो व्हील चेयर रखेंगे या एक वॉलंटियर रखेंगे। सक्षम ऐप में जाके ऑल दी PWD वोटर्स कैन बुक द फैसिलिटेशन इन एडवांस, अगर उन्हें कोई मदद चाहिए हमारे पोलिंग स्टेशन पे। बट हमारी भी ड्यूटी है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे बूथ पर आते हैं तो हम सब वोटर, आजकल भी ट्रेंड हमने नया शुरू किया है, हम बड़ी कोई उनको सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उनको बराबर की देने की जरूरत है, तो हम बड़ी इज्जत के साथ उनको लेके आते हैं, बड़े प्यार से लेके आते हैं। आई होप एवरीवेयर इन सोसाइटी वी ट्रीट आर persons with disabilities who are more able than us with equal respect. Form 12D circulate होंगे,
सबके घर पहुंचाए जाएंगे। अगर कोई 85 प्लस घर से वोट करना चाहते हैं, दे विल बी मोस्ट वेलकम टू दैट। टेक्नोलॉजी का फर्स्ट वर्टिकल इज वोटर हेल्पलाइन ऐप। कोई भी मतदाता, आई विल रिक्वेस्ट रादर ऑल दी वोटर्स टू प्लीज चेक देयर नेम ऑनलाइन, ताकि लास्ट मिनट में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतदाता सूची में अपना नाम चेक करें, अपना पोलिंग स्टेशन चेक करें, अपने बीएलओ का नंबर उसमें लिखा है वो चेक करें, उससे बात करें, और अगर आपका फोन नंबर सीडेड है तो इवन यू कैन डाउनलोड योर एपिक इलेक्ट्रॉनिक। कहीं कोई गड़बड़ आपकी नजर में आए, लगे कोई एमसीसी का वायलेशन है, तो अगेन आई रिक्वेस्ट टू द वोटर्स ऑफ दिल्ली टू प्लीज register on CVGIL, type, take a photo, tell us. We will reach there within a very short time and respond to you what has happened there, what we did. Your complaint was right, wrong, partially right, and this is what we did within 100 minutes time. Know all your candidates, it's also very necessary. बहुत सारे लोगों की criminal backgrounds हो सकती हैं, उन सब की details इस ऐप पर रहेंगी. So please download and see all your candidates. उनका पूरा विवरण वहाँ रहेगा. उनको पब्लिश भी करना पड़ेगा. अगर किसी की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, दे विल हैव टू डिक्लेयर इट इन द न्यूज़पेपर्स, ऑन द पोर्टल्स एंड प्रोमिनेंटली 3 times. हम एम्पलीफाई करेंगे. वी एंश्योर दैट द राइट ऑफ द पीपल टू नो अबाउट द एंटीसीडेंट्स ऑफ देयर कैंडिडेट्स इज वेल प्रिजर्व्ड एंड देन दे मेक द इन्फॉर्म्ड चॉइस व्हाट दे वांट टू डू. सुविधा पोर्टल फॉर द कैंडिडेट्स. To all the candidates, prospective candidates, are request कि आप सब सुविधाओं को ऑनलाइन मांगे, आपको उसी पे जवाब मिलेगा. गाड़ी का परमिशन लेना है, फील्ड्स का परमिशन लेना है, आपको कैंपेनिंग में ध्यान लगाएं, आराम से बढ़िया कैंपेनिंग करें. ये ऑफिस की दौड़ भाग से आपको बचाने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है. और यहाँ पर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे. इफ यू अप्लाई फॉर ए ग्राउंड फर्स्ट, you will get it first. So it's a kind of a single window. You don't have to run around. This is a good money power. Of course, we will be tackling for any inducement-free elections. सबकी बराबर चेकिंग होगी. हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते. अभी पीछे के इलेक्शन में एक बड़ा भारी हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उसका नहीं कर रहे, इसका नहीं कर रहे. गंदी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया. हम अपने आप को रोक के रखते हैं. हम लेट मी से इट लाइक दिस, पोलिंग ऑफिसर्स को धमकाने की स्टेज तक लोग चले जाते हैं बोलने में, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होता है. ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें. कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श. अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए. बच्चों को इस्तेमाल करना, विल बी रियली हार्श ऑन देम. दिस इज आवर रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स दैट कैंपेन का स्तर ऐसे न गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज. लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड. We'll be very, very strict with this. We have set up our teams and directed everyone to kind of be checking the inducements. If any, DOs and district magistrates and the ROs will ensure 2 things in particular, amongst many. Fair play and level playing field to every candidate irrespective of the party affiliation. This is what is the mantra which has been given to them. And if anybody, I am saying it in public and in press conference, if anybody violates that, we will take the strictest possible action. But at the same time, we also request all the political parties to not create undue pressure. They work under tremendous public delays. कब ईवीएम को ले जा रहे हैं, कब 17C दे रहे हैं, मतलब एक एक क्षण उनका हम देखते हैं पब्लिक डिलेज में. उनके एक एक एक्शन हमारे जो रूल्स हैं उससे बाउंड है. वो रिकॉर्डेड है. आप रिटर्न में मांगिए आपने ये डिसीजन क्यों लिया, हम देंगे. हमारे हर आरोप आपको, लेकिन शालीनता ना टूटे, नैरेटिव्स ना खराब बने, कैंपेन की शालीनता बनी रहे. इसी से हमारा लोकतंत्र आगे पनपेगा. Coming to the schedule now. So this is the schedule.
we will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. Entire election process after counting will be complete by 10th, and this is, we are doing elections in by-polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it. Yes, save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of the snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. There are two more. One is Basir Ghat in West Bengal, parliamentary constituency, and one is Visabhadar in Gujarat Assembly constituency. In both these cases, both are PC, sorry. In both these cases, there are election petitions pending, and the rule is that if an election petition is pending, we do not do by-elections there. The moment these are decided, we'll be ready to do it, as was the case with Milkipur earlier. Visabhadar is AC only, yeah, I know. So, friends, thank you very much. With this, I come to an end of this press conference. I would request, again, before ending, it's a festival which I am sure Delhi will celebrate in true spirits, and the campaign would be clutter-free, would not make noises which are unwanted. I request again that let Delhi vote with full participation. Thank you. Thank you, sir, for this very comprehensive briefing. Now, please raise your hands and we will come for the Q&A session. Let's start with the gentleman in the first row. Please, Micah, please move first row. नमस्कार सर, यहाँ सर, मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज नेशन से सर. मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में काफी बदलाव किए, और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे जो विपक्ष है, जो दूसरे दल है, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का डर था, इस वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है. आपकी इंटीग्रिटी पे सीधे तौर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है. सर, एक छोटा सा सवाल और है. मध्य प्रदेश में जो अभी नतीजे हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे, और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को दूसरे दलों को नुकसान हुआ. क्या कहेंगे इस पर? Let us go to the gentleman in the third row. सर, मैं ऋषिकेश कुमार न्यूज 24 से हूँ. सर, आपने दो चीज कहा कि 2020 के बाद 24 चुनाव 16 में सिंगल राज्य पार्टी का जीती रही. लोग ये भी पीछे पूछते हैं कि जहां राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज्यादा होती है वहां सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप करते हैं इलेक्शन कमीशन पर. और दूसरा, सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उससे भी कुछ संज्ञान ले रही है, क्या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? Good afternoon, sir. I just have 2 points to ask. First of all, thanks for explaining that entire process. It makes our life much easier. But apart from the question of, you didn't address why the rules. One is about the Aadhaar seeding with the electoral card. That's something that, initially you have said it should not be mandatory. Now it is more or less become mandatory to do it online. And of course, the larger process for you
You've done 31 elections. You are the best to give us advice on what are the election reforms that are required. And sadly, not much has been touched upon it. There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbered. So, TN station was famous for mixing the ballots. In the EVMs, you can't mix. You still can identify, and that does not help a free and fair election. We'll take one lady in the back. Last. Ma'am, please. हाय सर, ऐश्वर्या पालीवाल फ्रॉम इंडिया टुडे एंड आजतक। सब फ्रीबीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्व करने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में सब जगह घूम रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि रूल्स चेंज किए, ये मुद्दा है, मैं उसका जवाब आपने पूछ लिया। देखिए, रूल्स क्यों चेंज किया? पारदर्शिता खत्म कर दी, ये एक कंसर्न रेज किया गया, जैसे आपने कुछ कहा। पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है। पारदर्शिता कम करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, पहले तो ये बात मानस में बैठा लीजिए। अब ये प्रश्न आता है कि हमने क्यों चेंज किया। मुझे किताब जो है आपकी देखो, इस किताब में ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट, इसमें आप कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जाइए, रूल नंबर 93 इसका देखिए। रूल नंबर 93 में रूल नंबर 93(1) ये कहता है कि 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, 7 प्रकार, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक का नाम ले रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ लेंगे, ईवीएम्स की हैं, बाकी चीजें भी हैं। 17A, फॉर्म नंबर 17। अब 17C के बाद 17A अचानक प्रचलन में आ जाएगा आज के बाद, ऐसा मुझे लगता है, मेरे मुंह से निकल गया। 17A क्या है? 17A, जैसे ही पोलिंग स्टेशन पर दिन भर जो वोटर्स आते हैं, वो अपना, आप जब जाते हैं तो अपना साइन करते हैं, नाम लिखते हैं या अंगूठा लगाते हैं, जो भी आप करते हैं, अपना आईडी दिखाते हैं। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपका ये काम करता है। 17A की डिटेल इसलिए नहीं दी जाती, कानून में लिखा हुआ है, ताकि उससे वोटर की प्राइवेसी अफेक्ट ना हो जाए। इफ 17A इज आउट, दैट मीन्स हु केम टू वोट, विद whom he came, what ID he brought, उसके प्राइवेसी के सीरियस इश्यूज पैदा हो गए। Therefore, हमने सिर्फ एक चीज, just one, and why? Whatever was available will remain available except one. अभी वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में शायद कोई केस फाइल हुआ है, अभी तक हमें पता नहीं लगा है। पता लग गया होता तो मैं नहीं बोलता, अभी फाइल होने की खबर आई है। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इनसाइड द बूथ एंड आउटसाइड द बूथ इज नॉट टू बी गिवन, was never being given. It was prohibited earlier also by the instructions of 2024 and before. And it will not be given, just to make it clear, that is the only thing. This 93(2) has 25 forms, which include 17C, plus 4 forms. All of them were available and will continue to be available. So therefore, it is only to protect the privacy of the voter, profiling of the voter. 70 मतलब फिर तो पोलिंग स्टेशन के अंदर का मैंने लाइव वीडियो आपको कैसे दे, कितनी बड़ी सिक्योरिटी, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी वीडियो मिल गया, उसका भी पता लग गया, हर वोटर की फेस भी मिल गई। और सपोजिंग मैं दे दूं आपको, सोचिए जरा, कंट्री को सोचने की जरूरत है, लोगों को ये बात कैसे कह सकते हैं, समझने की जरूरत है। छोटी सी बेसिक सी मैथमेटिक्स भी नहीं कर सकते। आई मीन इट्स मतलब कितने झूठ बोले जाएंगे, कोई तो लिमिट होगी, कोई तो इंतहा होगी, कहीं तो जाके रुकेगा। अगर 10.5 लाख बूथ, प्लीज नोट दिस, मैं पूरे देश को बता रहा हूं, 10.5 लाख बूथ, 10.5 लाख बूथ पे सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पज के लिए, वो किसी को देने के लिए नहीं है। क्यों लेना चाहता है कोई, मैं ये भी बताता हूं आपको। 10 घंटे भी अगर मान लें, 7 बजे से 7 बजे तक की होती है 12 घंटे, 10 भी मान लें,
तो जरा अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया एक करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. He will give it to for machine learning. आपकी मेरी सबकी शक्लें, सबके प्रोफाइल, सबकी वोटर्स की प्राइवेसी विल बी पब्लिक। किसने वोट देने गए, किसके साथ वोट देने गए, कितने बजे वोट देने गए, कौन नहीं गया, किस कपड़े में पहन के गया, क्या उसका अटायर था, कैसा वो दिखाई देता है, कैसी उसकी प्रोफाइलिंग करनी है। मशीन विल लर्न दिस एंड मशीन विल during the polling process create so much artificial intelligence created content on the social media, आप पता ही नहीं लग पाएगा कि कोई बूथ जेन्युइन है या इनजेन्युइन। Every booth I will recreate on fact finders will also not be able to ever find out whether it's a fake or not. ऐसे लोग। चलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की फुटेज भी अगर देखें कैंडिडेट की, वो भी देखिए। वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 1800-1900 बूथ होते हैं, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। उसको भी अगर 10 घंटे देखना पड़ेगा तो 6.5 साल लगेंगे। तब तक ईपी का भी टाइम निकल जाएगा। कैंडिडेट भी करते क्यों लेना चाहता है और लेके मिसयूज करते हैं लोग। वी हैव एग्जाम्पल्स। अगेन कमीशन बहुत डेलिब्रेट डिसीजन लेके बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे किसी के भी राइट को अफेक्ट नहीं करना चाहता। बिकॉज पूछने का अधिकार सबका है, मांगने का अधिकार सबका है। लेकिन मिस्चीवियस चीजों पर भी हम क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। इस फुटेज को लेके मिसयूज किया गया। वी हैव एग्जाम्पल्स। देयरफॉर सीसीटीवी का रूल चेंज करने का बेसिक कारण यही है। लेट एवरीबडी बी एश्योर्ड देयर इज नथिंग व्हाट वाज अवेलेबल विल नॉट बी अवेलेबल। वी आर मेकिंग दिस थिंग। अगर अभी भी ऐसा लगे, अभी तो हमने किया नहीं, अभी क्या चेंज किया? एज प्रिस्क्राइब्ड इन दी रूल्स। अभी तो प्रिस्क्राइब ही नहीं किया पहले से पहले। जब प्रिस्क्राइब करेंगे तब पूछ लेना। जब प्रिस्क्राइब्ड है वो मैंने बताया 25+4 93(2) में इतने फॉर्म्स मिलते हैं, वो मिलते रहेंगे। वो तो रूल्स में लिखे हुए हैं। वी हैव नॉट चेंज। सो पारदर्शिता इज आवर बिगेस्ट फोटे। अगर कोई हमसे कहेगा भी कि पारदर्शिता खत्म कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। वी विल रिक्वेस्ट एंड डेवलप एंड अलाउ एवरीबडी टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज। महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड, बट वी विल इन नो अनसर्टेन टर्म्स डिक्राई दिस एंड कंडेम दिस, but only when NCC is in power. From today onwards, I am again warning everybody in the elections in Delhi. इस तरीके की बच्चों का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी करेंगे तो फिर लाइन अगर आप क्रॉस करेंगे, बच्चों का यूज करेंगे, महिलाओं के प्रति कोई गलत विचार करेंगे। हमने पिछले 3-4 इलेक्शन किया था। जिस किसी ने महिला के खिलाफ बोलने की कोशिश की, हम नहीं अलाउ करते। अब हमारे एक तरफ वो एम्पावरमेंट हो रहा है, एक तरफ हम ज्यादा से ज्यादा वोटर पर आ रहे हैं, उनको बूथ पे लेके आ रहे हैं, वो आ रही हैं अपने से। और आप उनको ऐसे बच्चों को, अपनी मदर्स एंड सिस्टर्स को ऐसे बोले, दिस इज शेमफुल। वी विल, अगर जरूरत होगी तो हम लाइन क्रॉस करेंगे और फिर केस भी करेंगे। फ्रीबीज अगेन is a matter which is sub judice. Therefore, we are not speaking on this. But since you asked about the reforms, I'll tell you the existing legal framework on what is in place and what can be done and what should be done. It is a settled law today in the Subramaniam Balaji versus State of Tamil Nadu that freebies are not disallowed.
This is the apex court's order in Subramaniam Balaji. वहाँ फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन था, कोर्ट ने पाया 3 मेंबर डिवीजन बेंच पीछे। तो दिल्ली का दंगल अब शुरू होने वाला है और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इंजीनियर इमरान जी हमारे साथ जुड़ गए। इमरान जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग, नतीजे 8 फरवरी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली का चुनावी बिगुल बज चुका है और अब इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से 5 तारीख का ऐलान किया है, तो निश्चित रूप से जल्दी ही दिल्ली को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार मिलने जा रही है। वो सरकार जिसने सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति की है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की राजनीति की है। तो आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली के चुनाव में फिर से अपनी उन्हीं मुद्दों के चुनाव में जा रही है जिन मुद्दों पर हमने काम करके दिखाया, चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो, स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हमारी फरिश्ते योजना की बात हो, या अब जो हम जिस तरीके से पुजारियों को और ग्रंथियों को मंदिर और गुरुद्वारे के जो 18,000 रुपए सम्मान राशि के रूप में दे रहे हैं, तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर इस बार चुनाव के अंदर जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। आयोग के मन की बात आधा पौना घंटा में कह के अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत एप्लीकेशंस डाली उनकी एप्लीकेशन स्वीकार करने वाले ऑफिसर्स क्यों, उनका नाम हाइड क्यों किया जा रहा है, जिन लोगों ने गलत और भ्रामक तरीके से लोगों के वोट कटवाने के लिए झूठे एप्लीकेशंस लगाए हैं, जिन लोगों ने मतलब एप्लीकेंट भी झूठे हैं, वो एप्लीकेंट भी मना कर रहे हैं कि जी मैंने तो किया ही नहीं। तो ऐसे में कौन कर रहा है ये कार्रवाई, उन्होंने क्या एक्शन लिया? जो लोग 1100 रुपए बांटते हुए पकड़े गए उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मान जाएंगे बहुत निष्पक्ष है। केवल मन की बात और दिल की बात टीवी पे बैठ के कह देने से काम थोड़ी चलता है कि हाँ जी। सवाल खड़े करे थे, खास करके नई दिल्ली के चुनाव अधिकारी उन्होंने CC नेवी का चुनाव अधिकारियों के दबाव में बनाए उन्हें। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता डॉक्टर अवधेश जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम सुन रहे थे 70 सीटों पर अब चुनावी जंग की शुरुआत होने जा रही है, क्या कहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो तारीखें घोषित की गई हैं वो स्वागत योग्य है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखिए दिल्ली में जो 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि देखिए दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को देख रही है। और देखिए आप भी देख रहे होंगे किस तरह से दिल्ली में पिछले 10 साल में क्या विकास हुआ है दिल्ली में, ये आपने भी देखा होगा। दिल्ली की जनता जानती है अच्छी तरह से। मैं आपको बता दूं, 8 तारीख को आने वाली 8 फरवरी को दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में कमल खिलने वाला है और दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है। क्योंकि दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है दिल्ली को, तो दिल्ली की जनता निश्चित तौर पर एक सुशासन वाली सरकार चुनने जा रही है और डबल इंजन की सरकार चुनकर दिल्ली को एक विकसित देश की राजधानी बनाने का काम दिल्ली की जनता करने वाली है। ठीक है, आम आदमी के प्रवक्ता भी इंजीनियर इमरान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान जी, आप सुन रहे थे अवधेश जी को? जी हाँ, जिस तरीके से देखिए चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुआ था उससे पहले ही लगातार जो बेईमानी की इनकी अपनी एक हिस्ट्री रही है, जो इनका अपना एक इतिहास रहा है चुनाव के अंदर, उसको रिपीट करने की कोशिश की। जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में इन्होंने खुलेआम बेईमानी की थी, वही चीज अगर वो दिल्ली के अंदर कर रहे थे, जो बात साफ साफ दिख रही कितने लोगों का वोट काटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। और लिखित शिकायतें हमने चुनाव आयोग को करी हैं, एविडेंस के साथ करी हैं, प्रमाण के साथ करी हैं, साक्ष्यों के साथ करी हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली की जनता की नजर में भारतीय जनता पार्टी की कोई साख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की जो फूट डालो और राज करो की नीति है, उसको कम से कम दिल्ली के लोगों ने अभी तक नकारने का काम किया और आने वाले चुनाव के अंदर भी वही होने जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बेईमानी का सहारा लेना चाह रही है। जिस तरीके से पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बोला गया, यूपी बिहार के हमारे भाइयों को रोहिंग्या बोला गया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हताशा है, निराशा है
और वो आम आदमी पार्टी के ना तो काम का मुकाबला कर सकते हैं, ना तो आम आदमी पार्टी की रणनीतियों का मुकाबला कर सकते हैं, और ना तो आम आदमी पार्टी ठीक है। डॉक्टर अवधेश जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें साफ तौर पर आयुक्त कहते हुए नजर आए कि महिलाओं के ऊपर अभद्र जो टिप्पणी है वो नहीं बर्दाश्त होगी और उसका खास तौर से ध्यान रखना होगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लगातार रमेश विधूड़ी हो, वो महिलाओं को लेकर या फिर आतिशी सीएम को लेकर भी कई बातें ऐसे कहती हुई नजर आई कि उन्हें अपने आंसू तक बहाने पड़े। जी डॉक्टर अवधेश जी। जी, देखिए अभी मैं सुन रहा था, मेरे भाई जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है इमरान जी, इनको शायद पता नहीं है या फिर ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में जो सरकार इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, पत्रकार महोदया, पिछले 10 साल में दिल्ली में भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा काम इस पार्टी ने नहीं किया है। दिल्ली इनके आधे से ज्यादा नेता भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, अब बेल पर घूम रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं ईमानदारी की, तो ईमानदारी की बात ना करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि पिछले 10 साल में केवल दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। ये कहते थे कि हम 8 लाख रोजगार देंगे, 8 लाख रोजगार दिया आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 10 साल में। बताइए, 8 लाख तो छोड़िए मैडम, इन्होंने तो रोजगार छीनने का काम किया है। आपने देखा रोजगार छीनने का काम किया। देखिए, आम आदमी पार्टी की तो पहचान है काम की राजनीति। हम तो आज भी अपने काम के नाम पर ही वोट मांगने जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये साहस है कि उन्होंने केंद्र में रहते हुए जितने काम किए उसके नाम पर वोट मांग पाएंगे? हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों से आज भी वोट मांग रही है, तो अपने काम के नाम पर मांग रही है। हम वादों के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, काम के नाम पर मांग रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी से जो आपने सवाल किया था, वो रमेश विधूड़ी के संबंध में किया था, लेकिन उसका जवाब वो नहीं दे पाए। वो इधर उधर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा यही है कि वो जनता को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। रमेश विधूड़ी लगातार, चाहे वो सदन के अंदर रहते हैं तभी वो बदतमीजी करते हैं, सदन के बाहर भी वो आज महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप अपने चैनल पे बोल नहीं सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका एक तरीके से उनके संरक्षक के रूप में काम कर रही है, उनको पालने पोसने का काम कर रही है और निरंतर। तो बिल्कुल देखना होगा, दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से ये दावे और वादे तो कर रही है। आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां बनती हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, उस काम को लेकर हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हम करके दिखाएंगे, कौन किस पर भारी होता है। फिलहाल 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे और सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 70 सीटों पर दंगल शुरू होने जा रहा है और 5 फरवरी को वोटिंग है। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनाए गए।